Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पहला है प्रतिबल किसे कहते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस। तो इसका आंसर होगा प्रतिबल एक आंतरिक अवस्था है जो शरीर के दैहिक मांगों या वैसी पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिस्थितियां जो वास्तव में क्षति पहुंचाने वाली हैं से निपटने के मौजूद साधनों को चुनौती देने वाला होता है। Stress is a feeling of emotional or physical tension. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry, or nervous. Stress is your body's reaction to a challenge or demand. In short bursts, stress can be positive, such as when it helps you avoid danger or meet a deadline. नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नआउट क्या है, व्हाट इज बर्नआउट। तो इसका आंसर होगा किसी कार्य को करने के बाद व्यक्ति में उत्पन्न शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक थकान को बर्नआउट कहते हैं। यह स्थिति जटिल तथा निरंतर कार्य में लगे रहने के कारण पैदा होती है, जो प्रायः स्वभाव में चिड़चिड़ापन, निराशा, असक्षमता तथा अपने को अंधी गली में अनुभव करना आदि लक्षणों के रूप में व्यक्त होती है। ठीक है। बर्नआउट इज अ स्टेट ऑफ emotional, physical and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. It occurs when you feel overwhelmed, emotionally drained, and unable to meet constant demands. Okay. नंबर 3, प्रतिबल के 3 आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं? What are the 3 internal sources of stress? यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर, प्रतिबल के आंतरिक स्रोत कुंठा, द्वंद्व, दबाव हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रतिबल हैं। जब आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती है तो यह कुंठा या निराशा पैदा करती है। यह कुंठा व्यक्ति के आंतरिक अनुभव की क्षमता, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की दुर्बलता के साथ साथ दुर्घटना, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के कारण या सामाजिक आर्थिक परेशानी के कारण उत्पन्न हो सकती है। द्वंद्व का अर्थ इच्छा एवं रुचियों के संघर्ष से है। दबाव किसी की स्वयं की आकांक्षा एवं स्वार्थपरक आदर्श के कारण उत्पन्न होता है। There are 3 internal sources of stress. They are frustration, conflict, and pressure. Some stressors are internal stressors, including thoughts or behaviors. These thoughts come from one's psychological mindset or
expectations. Examples include putting pressure on yourself to be perfect or fear of public speaking. In more serious cases, internal stressors may lead to feeling of depression and anxiety. Number 4. सामाजिक प्रतिबल की व्याख्या करें. एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेस. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा सामाजिक प्रतिबल से तात्पर्य सामाजिक जीवन की प्रतिबलकारी घटनाओं से संबंधित प्रतिबल से है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु, बीमारी, तलाक, पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध, अलगाव सामाजिक प्रतिबल के उदाहरण हैं. इनमें से अधिकतर जीवन के प्रमुख प्रतिबल होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन को विभिन्न अवसरों पर प्रभावित करते हैं. इस प्रकार के प्रतिबलों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है. Social stress is stress that stems from one's relationship with others and from the social environment in general. Based on the Appersonal theory of emotion, stress arises when a person evaluates a situation as personally relevant and perceives that they do not have the resources to cope or handle the specific situation. An event which exceeds the ability to cope does not necessarily have to occur in order for one to experience stress, as the threat of such an event occurring can be sufficient. Okay. Differentiate between eustress and distress. Answer: stress can be classified as a positive stress and negative stress. Positive stress is also called as eustress. Eustress is the term used to describe the level of stress that is good for you and is one of a person's best assets for achieving peak performance and managing minor crises. Distress causes our body's wear and tear. This disturbs our equilibrium and exceeds a person's ability for cope. eustress और distress में अंतर. सकारात्मक तनाव यानी धनात्मक तनाव को eustress कहते हैं. धनात्मक तनाव या सकारात्मक तनाव से तात्पर्य वैसे तनाव से है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें चुनौती प्रदान करते हैं और जिसे हम ग्रहण करके यानी उस चुनौती को ग्रहण करके अपने कार्य को सफल करने की ओर अग्रसर होते हैं. यानी इसका प्रभाव हमारे मन और शरीर में धनात्मक यानी पॉजिटिव रूप से पड़ता है. वैसे स्ट्रेस यानी तनाव को eustress कहते हैं, किंतु वैसा तनाव जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन और शरीर में पड़ता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वैसे तनाव को डिस्ट्रेस कहते हैं. ठीक है. आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उसके विषय में चर्चा की. अगले क्लास में कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.